یہ سیاسی معاملات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے اسے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے، تو بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس کے اوپر بات کرنا پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اس کے حوالے سے گائیڈ کر سکیں اور ان کو بتا سکیں۔ اور یہ سیاسی معاملات عجیب اس لیے ہوتے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے والوں پر مدعا ڈال دیتے ہیں کہ ہم جو ان کا کیا دھرا ہے ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح کی باتوں کو لے کر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو سابقہ حکمران ہوتے ہیں وہ موجودہ کے سامنے کچھ ایسے تقاضے رکھتے ہیں، ایسی باتیں رکھتے ہیں، ایسے معاملات رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے، حالانکہ جب وہ خود حکومت میں ہوتے ہیں تو انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسی ہی باتوں کو لے کر پچھلے دنوں امریکہ میں لگا اقلیتی سیاست کو ایک بڑا تڑکا اس وقت جب موجودہ اقلیتی امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا بھی اس دعوت میں، اس پروگرام میں شریک تھے، اور وہیں پر ایک سابقہ مسیحی جو وزیر رہ چکے تھے انہوں نے بہت سی ایسی باتیں جب موجودہ وزیر کے سامنے رکھیں تو پھر ان کے درمیان کس طرح کے گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، ذرا ان باتوں سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں اور ان باتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ کیسے اپنے اوپر سے مدعا اتار کر دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے جو ہمارے سابقہ وفاقی وزیر رہے ہیں، ذرا پہلے ان کی گفتگو سن لیجئے۔ سب سے پہلے میں منسٹر صاحب کو یو ایس اے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو منسٹر صاحب، ہم جو بھی بات کریں گے ہم نے دل سے آپ کو بلایا ہے۔ سکھ کمیونٹی بڑی لونگ ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی محبت کرنے والی ہے، اسی طرح کرسچنس لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ چند مثالیں جو ہمارے کرسچنس لوگوں کو ریزرویشن ہے وہ میں آپ کے گوشت گزاروں گا، کیونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، آپ بھی منارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اگر آپ کی بات جو ہے ہائر اتھارٹیز تک جاتی ہے، چیف منسٹر صاحبہ تک، پارٹی قیادت تک، نواز شریف صاحب تک اور پرائم منسٹر صاحب تک جاتی ہے، تو آپ ہماری ریزرویشن ان تک پہنچائیے گا، کیونکہ جو ہم امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں ہماری محبت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے لوگ وہاں پر بستے ہیں، اور مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کرسچن جس حالات میں سے گزر رہے ہیں ماضی میں کبھی ایسے حالات نہیں تھے۔ اس کی چند مثالیں، چونکہ میں بھی سیاست میں رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی کرسچنس کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے، شروع سے 1947 سے لے کر آج تک جو بھی حکومت آئی ہے پاکستان میں، جس نے بھی رول کیا ہے، میں بھی وزیر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت بڑے حالات اچھے تھے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ ہمیں صرف دلاسے دیے جاتے ہیں، ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے اور دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرسچنس ہیں ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ تو جو بیسک رائٹ کرسچنس کے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ آپ لوگ کیا کریں، ہر گورنمنٹ ہمیں لالی پاپ دیتی ہے، یہ 10,000 روپیہ لے لیں، یہ چیک لے لیں، 20,000 لے لیں، جو بیسک رائٹ ہے وہ تو آپ لوگ ہمیں دے نہیں رہے، جس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کمپین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری، آپ نے دیکھا، جو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے کرسچنس لوگوں کو پاکستان میں، دکھ میں مبتلا ہے، وہ ہے فورس کنورژن۔ فورس کنورژن کو روکنے کے حوالے سے یہ ہم آپ سے سمجھیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی وزارت اس کے اوپر کام کرے کہ فورس کنورژن کو آپ نے روکنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اہم ہے کہ آپ کی وزارت کو 18 سال کی لمٹ رکھنی چاہیے کہ اگر 18 سال کے بعد بچی بالغ ہے، بچہ بالغ ہے، کوئی بھی مذہب ریلیجن تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نابالغ لوگوں کو فورسفلی جو ہے وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے بلاسمی لا۔
ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर हमने भी बड़ा काम किया। मुझे पता है ये एक टफ इशू है, पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी पता है कि ये जो कानून है लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे लोग, जो भी आदमी खाता पीता है या जिससे जिसकी कोई रंजिश होती है, वो जो है उसके ऊपर तौहीन रसालत का केस बना देता है। मुझे पता है कि ये कानून पाकिस्तान में चेंज नहीं होगा। हमारा मुतालबा ये है कि जो भी तौहीन रसालत किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है, साबित हो जाता है, तो उसे भी वही सज़ा दी जानी चाहिए जो आपने उसके लिए मुकर्रर की है, जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है। तो इस तरह से इस कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल भी रुक सकता है। चौथा, वो आपकी वजारत के हवाले से अब वो मैं नहीं बात करना चाहता, मेरे भाई है, क्योंकि आपके सामने ही आपके एमपीएस को ये शिकवा है कि जी वजीर साहब ने हमें फंड नहीं दिए, फंड जो है वो शायद मंदिरों पे लगा दिए हैं। तो आप पैसे लगाएं, हम ये नहीं कहते कि आप ना लगाएं, लेकिन आप देखें, आप वजीर हैं, आपको एक कुर्सी मिली है, तो उस तरीके से माइनॉरिटीज की जो वजारत है उसके फंड भी उसी तरह से एलोकेट करें। लेकिन ये जो 3 इशू हैं, ये एज ए भाई समझें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर अगर आपकी वजारत काम करे तो मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। अब साबका वज़ीर की गुफ्तगू तो आपने सुनी है, इस पर यकीनन गौर भी किया है और 3-4 बड़े बुनियादी नकात और बुनियादी जो अक़लीती मसाइल हैं उनको सामने रखा है, पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि जो मौजूदा वज़ीर हैं उनको इनके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ कि ये काम होने चाहिए और जितने मुतालबात पेश किए गए उन पर यकीनन अमल दरामद भी होना चाहिए। अब इसका जो जवाब है वो मौजूदा वज़ीर यानी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने क्या दिया, आइए ज़रा ये गुफ्तगू भी सुनते हैं और सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और फिर उसके बाद आपको मैं इसका एक ऐसा हल बताऊंगा जो यकीनन हमारे लिए बतौर ईमानदार है। आइए ज़रा ये गुफ्तगू सुने। मेरे आने से पहले इस वजारत में बहुत सारे मसीही वज़रा थे। क्या आज तक उनमें से किसी ने पूछा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? मेरे से पहले अकरम मसीह गिल साहब खुद मान रहे हैं कि मैं वफाकी वजीर था, इनके पास ये वजारत थी माइनॉरिटी की, ये सारे काम इनके करने वाले थे। मुझे तो आए हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों की मैं जवाबदेह हूँ। अब मैं चाहूँगा कि तमाम अक़लियतें इनसे पूछें कि जब ये वफाकी वज़रा थे, सूबाई वज़रा थे, ये सियासत यहाँ पे इस जगह पे आगे करने की नहीं थी। मैं अकरम मसीह कहता मुझे दुख हुआ कि आपने यहाँ पे सियासत छेड़ दी, ये सियासत पाकिस्तान में अच्छी लगी। यहाँ पे तो मैं ये बात करने आया था कि ये जितना बड़ा मुल्क है, इस मुल्क में हमने किस तरीके से अपनी अक़लियत के लिए काम करना। मेरी बहन सुमेरा का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिस दिन मैं वज़ीर बना, वज़ीर बनते सबसे पहले मैंने कहा कि इस वक्त हमने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स करने जो बदकिस्मती से आज तक कोई नहीं कर सका। इन वज़रा की सीटों को, इन पाकिस्तान प्रिविलेजेस को सब ने इंजॉय किया, सब ने बैरूनी दौरे किए, सबकी फैमिलीज इस वक्त जितने वज़ीर थी सबकी फैमिलीज बाहर बैठी है, मेरी कोई फैमिली बाहर नहीं बैठी हुई, सब ने अपनी फैमिलीज बाहर आके सेट की है। कहाँ से? तो मैं इस वक्त ये कहता हूँ, पिछले 2 सालों में जब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात हुई, सबसे पहले मैंने कहा कि आए क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के अंदर जहाँ जहाँ पे लैकूना है उन लैकूना को दूर करें। क्या 1872 कानून जिसकी मेरी बहन बात कर रही थी, इनको देखना मेरा काम था? ये जब मुझसे पहले के वज़रा थे हाथ खड़े होकर तो सब बात करते, क्यों नहीं देखा? आप जब उस कानून के अंदर पास तारिक साहब, उस कानून के अंदर ये मौजूद है कि 13 साल की बच्ची और दोनों में से किसी एक का मसीह होना, तो क्यों नहीं चेंज किया आज तक? क्यों ये चेंज किए बगैर आज तक ये सीटों को एंजॉय करते रहे, क्यों नहीं चेंज किया? यस, इस वक्त मैंने मारिया शहबाज से बहुत पहले एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, बट क्योंकि दिस इज अ प्योरली रिलीजियस मैटर, इसमें मैंने सारी थियोलॉजिकल सेमिनार्स को इंगेज किया है, बिशप साहिबान को इंगेज किया है, सिविल सोसाइटी को इंगेज किया है, पार्लियामेंटेरियंस को इंगेज किया, उनको ला के बिठा के मैंने कहा आए बैठे। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है
वो हमारा क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के अंदर है, ताकि हम उन क्रिश्चियन पर्सनल लॉज को ठीक करें। दूसरा मसला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आपकी तरफ से बात आई है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब आई, उससे पहले किसी सियासी जमात ने भी जुर्रत नहीं की कि असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहे कि हाँ अक़लियत का इशू है और हमने इन मसलों का हल निकालना है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सबको प्लेटफॉर्म दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इनसे अकाउंटेबिलिटी की बात पूछे तो फिर ये कहते हैं हम टारगेट हो रहे हैं। भाई आप अपनी अकाउंटेबिलिटी जवाब दे हो ना, क्यों नहीं होती आप जवाब दे? आपको जब मौका मिला सिर्फ आप एक कोई बात करते, आपने कौन सी कानून साजी किया पिछले 25 साल में? आप बैठे थे मिनिस्ट्रियों में, कोई एक जवाब दे दे कि इन्होंने कौन सी कानून साजी। चले बाकियों को तो छोड़ देना, सिख पर्सन लॉस पे इन्होंने क्या किया, हिंदू पर्सन लॉस पे तो वो तो छोड़ दे, आप मुझे ये बता दें मसीहियों के लिए क्या किया। कोई एक बात करके मुझे बता दें कि हमने ये काम किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस वक्त जब हुकूमत में आए हैं, हमसे पहले जड़ा वाला वाक़या हो चुका था, लोगों के घर जल चुके थे, लोग तकलीफ में थे, लोग घर से निकलते घबराते थे, लोग बात करते हुए घबराते थे। चर्च के अंदर से जब आवाज़ आती थी उसकी दुआ की तो वॉल्यूम नीचे कर देते थे, कोई बाहर से आके नुकसान ना कर दे। हम जब हुकूमत में ये इश्तियाली था हमारे लिए, हमने आती उस इन्वायरमेंट को आहिस्ता आहिस्ता डाउन किया। हमने उसको इस तरीके से किया कि जब सरगोदा का वाक़या होने लगा हमने उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया, और एक बहुत बड़ा जो दूसरा सारे होने जा रहा था जड़ा वाला हमने उसको रोका। आज मुझसे पहले बहुत सारे मसीह मिनिस्टर थे ना, आज मुझे बताइए अगर रमेश सिंह अरोड़ा वजीर है और वो सारा कुछ प्रेशर अपने ऊपर बर्दाश्त करता है और वो ये कहता है कि मैं क्रिसमस की रैली निकालने जा रहा हूँ, और मुझे बार बार कहा जाता है कि मत करें ये काम, ये तो मसीह वज़रा नहीं कर सके, मैंने कहा मैं ये करूँगा। मेरे लिए कोई तफरीक मसीह हिंदू सिख की नहीं है, मेरे लिए सारे बराबर है। मेरी सबसे प्रायोरिटी मेरे मसीही है। आज भी दरबार साहब गुरुद्वारा साहब के अंदर जो हेड लांग रही है वो एक मसीही है। आज भी दरबार साहब करतारपुर साहब के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहब के रुमालों की सेवा करता है वो मसीही है। हम तो सरबत पले वाले बात करने वाले बात लोग हैं। हम तो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब दे उपजे कौन भले को मंदे। आप यहाँ पे खड़े होके आप खुद कहते हैं माइनॉरिटी हमारे हकूक पामाल हो रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी की बात करते हैं, फर्दर्स में तकसीम करते हैं, और आप उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान की उसको खराब कर रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, खुदारा ये पॉलिटिक्स मत करें। अगर आप वाकई सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आगे बढ़े, मसाइल का अदराक करें, मसाइल को आइडेंटिफाई करें। अब ये सारी बातें आपने सुनी है, ये सारी गुफ्तगू आपने सुन ली है। क्या नतीजा निकाला है आपने इन सारी बातों से कि हमारे जो पहले एक मसीही वफाकी वज़ीर रहे हैं, अक़लियती अमूर के भी वो वज़ीर रहे हैं, लेकिन कैसे वो बैरून मुल्क भी सेट हो चुके हैं। और मौजूदा वज़ीर ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया है कि आपने तो ज़्यादातर यही काम किया है कि अपनी फैमिलीज़ को आपने बैरून मुल्क सेट किया है। और ये बात हमें अजीब भी लगती है कि जिनके पास वसाइल होते हैं वो इस मुल्क में रहने और ठहरने के बजाय दूसरे ममालिक का रुख कर जाते हैं। अब इस जो साबका वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी ऐसा किया है, क्योंकि वो ख़ुद भी इस बात का इकरार अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं। तो मैं तो इस वक्त अमेरिका में हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में जो लोग हैं हमारा दिल उनके साथ धड़कता है या हमें उनकी बड़ी फ़िक्र है। अब ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि इनको कितनी फ़िक्र है कि अपने लोगों को ऐसे हालात में छोड़कर ख़ुद ये वहाँ पर बसे हुए हैं, और फ़िक्र उन्हें अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों की है। और जो मौजूदा वज़ीर हैं जो कारकर्दगी उन्होंने गिनवाई है, अब इसके बारे में मुझे तो इतना पता नहीं है कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ या कहाँ पर ऐसा मामला होना चाहिए था, या जो काम वो कर रहे हैं उसकी आउटपुट क्या है या कितनी प्रोग्रेस सामने आई है। लेकिन बतौर ईमानदार मैं आपके सामने ये बात ज़रूर रखना
चाहता हूँ कि ये जो सियासी लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है इनकी अपनी जमात के साथ वफादारियाँ भी होती हैं, इनकी अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, इनके अपने बहुत से मामलात और बहुत से मसाइल भी होते हैं। और हमें ठीक है ये हमारे नुमाइंदे हैं, हमें इन तक रसाई करनी चाहिए, अपने मामलात इन पर इनके सामने रखने चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए मुंतखब होते हैं। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर मैं खुदा के पाक कलाम की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये भी इंसान हैं और इंसान होने के नाते से ये बेबस भी हैं, लेकिन आप भरोसा उस पर करें जो कभी बेबस नहीं होता। ज़बूर नंबर 118 की 8वीं और 9वीं आयत यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, आमीन। इन आयात को आपने सुना है और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस हमारे सामने इस बात को रखता है कि इंसान पर भरोसा करने की बजाय उमरा पर भरोसा करने की बजाय दोनों आयात में दो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक जगह पर इंसान है यानी आम इंसान, और फिर दूसरी जगह पर उमरा यानी कि वो जो हुक्मरान हैं। हमें उन पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर भरोसा करना चाहिए, और ये बेहतर बात है, ये बेहतरीन बात है, क्योंकि एक और जगह पर खुदा का बंदा ये कहता है कि अपना पार यहोवा ते सुट आप ही ओ संभाले। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे, आमीन।